Good morning, all of you. You all are welcome in the Sacred Heart School online classes. Today, in this video of class 11th chemistry, we will discuss about one type of the bond that known as hydrogen bond. First of all, we will discuss the definition of the hydrogen bond. How you can define the term hydrogen bond? The hydrogen bond is an electromagnetic attraction, not a true bond. It means the hydrogen bond is a kind of the electrostatic force of attraction which is developed between the two molecules. These molecules may be of same type and these molecules may be of different type. तो whenever the two molecules with the two different type of the atom, जैसे एग्जाम्पल के फॉर्म में HCl, तो whenever a bond set up between this HCl, तो now what you will notice, the more electronegativity of chlorine is responsible to pull the shared electron towards itself, and this chlorine will retain negative charge. On the other hand, the hydrogen will retain the positive charge on it. So due to retention of this plus and minus charge, the resultant dipole set up between this HCl molecule, so the two same type of the HCl molecule start attracting each other. क्या मतलब है कहने का, एक मॉलिक्यूल का Cl नेगेटिव दूसरे मॉलिक्यूल के H पॉजिटिव आयन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन मॉलिक्यूल्स में डेवलप होगा आप उसको क्या नाम दोगे, दैट इज द हाइड्रोजन बॉन्ड. नाउ वी विल डिस्कस वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड. दिस इज द वाटर मॉलिक्यूल in which the more electronegative oxygen atom occupying the central position. Whenever the covalent bond set up between this O and H atom, the high electronegativity of this oxygen is responsible to pull the bonded electrons towards itself, and this O will retain the negative charge and this H will retain the positive charge. So in this whole water molecule, दिस एंड दिस वाटर के मॉलिक्यूल्स के अंदर जो H वाला एंड है एंड इस पर चार्ज समवॉट पॉजिटिव होगा एंड वाइल दिस ऑक्सीजन रिटेन द नेगेटिव चार्ज. तो व्हेनेवर सच टाइप ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल कम क्लोज टू ईच अदर, तो एक वाटर मॉलिक्यूल का H पॉजिटिव आयन दूसरे वाटर मॉलिक्यूल का O नेगेटिव आयन आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे एंड ड्यू टू दिस अट्रैक्शन द two water molecule come close to each other, and this force of attraction which is denoted by here by the dotted line known as hydrogen bond. So H bond is always represented with the help of this dotted line, and whenever this dotted line are shown between the two molecule जो H bond की property को indicate करेंगे. Now we will discuss about the different type of the H bond. On the basis of the magnitude of the attraction, the H bond can be divided in the two category. One category we are discussing here that known as intermolecular hydrogen bonding, and the second category known as that is intramolecular H bonding. So first of all we are taking here the intermolecular H bonding. So in this type of the intermolecular H bonding, whenever the same type of the molecule come close to each other due to retention of the positive and negative charge, the resultant bond appears known as intermolecular H bonding. To explain this intermolecular H bonding, we are discussing here the example of this water. इस वाटर के मॉलिक्यूल में एक H पॉजिटिव एक वाटर का और O नेगेटिव दूसरे वाटर का आपस में डॉटेड लाइन से H बॉन्ड बनाएंगे. तो इस बॉन्ड के अंदर सिर्फ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ना कि कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है. तो याद रखिएगा दो वाटर मॉलिक्यूल और आपस में एक दूसरे से बॉन्डेड कहलाएंगे, और जितना ज़्यादा मैग्नीट्यूड इस H बॉन्ड का होगा उस मॉलिक्यूल्स का उस कंपाउंड्स का बॉइलिंग पॉइंट भी इसीलिए बढ़ जाता है. तो आप सभी जानते हैं वाटर बॉयल
at the 100 degrees Celsius. Reason behind, due to enormous H bonding among these water molecules. To explain this intermolecular H bonding, we will discuss here one more molecule there. ठीक है, इस मॉलिक्यूल में क्या लिया आपने, CH3CN. दिस इज द इथेन नाइट्राइल. तो इस इथेन नाइट्राइल में या दिस इथेन साइनाइड का जब इंट्रैक्शन आप वाटर मॉलिक्यूल से कराओगे तो इस वाटर मॉलिक्यूल में क्या मिलेगा, इसका एक H एंड और ऑक्सीजन जो नाइट्रोजन है आपका, एंड दिस N रिटेन द नेगेटिव चार्ज. तो एक का पॉजिटिव एंड एक का नेगेटिव एंड आपस में बॉन्डिंग बनाएंगे. इस तरह की बॉन्डिंग के अंदर दो डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल का आपस में इंट्रैक्शन हो रहा है. यहाँ पर सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स का आपस में इंट्रैक्शन था. तो दिस एग्जाम्पल इज द एग्जाम्पल ऑफ द इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग, while this one is the example of the intermolecular H bonding. So overall the complete H bonding can be classified under two heading. One is intermolecular and second one is intramolecular. There are various other examples of the intramolecular H bonding. Best example है DNA, deoxyribose nucleic acid. In this DNA molecules, the two nitrogenous bases always interact with each other with the help of this H bond. जितना भी DNA के बारे में आप जानते हैं, जैसे एक होता है एडेनिन, एक होता है थाइमीन, तो A एंड T के बीच में हमेशा आपको डबल बॉन्ड ही मिलेगा. तो बेसिकली इस डबल बॉन्ड के अंदर जो आपका H बॉन्ड ही प्रेजेंट होता है, जो एडेनिन को थाइमीन से कंबाइन करने के लिए प्रमोट करता है. इन अ सेम वे साइटोसिन इज ऑलवेज कंबाइंड विद दैट इज गुआनिन. तो बेसिकली द ट्रिपल बॉन्ड इज देयर एंड दीज ट्रिपल बॉन्ड्स आर H बॉन्ड. तो दीज आर द वेरियस एग्जाम्पल ऑफ द इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग. द वन एग्जाम्पल वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर, दैट इज इन केस ऑफ दिस इथेन नाइट्राइल मॉलिक्यूल, इथेन साइनाइड, एज वेल एज वाटर इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग, जो कि यहाँ पर ब्लू डॉटेड लाइन से इंडेक्स किया गया है. और इंटरमोलिकुलर्स के अंदर सेम टाइप के मॉलिक्यूल आपस में बॉन्डिंग को प्रमोट करते हैं. ओवरऑल द कंप्लीट एच बॉन्डिंग कैन बी डिवाइड इन टू कैटेगरी, इंटरमोलिकुलर एंड इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग. नाउ we are taking the next segment of H bonding, that is the H bonding direction, H bonding length, H bonding angles and the strength of the H bonding. So these are the various factors and which also affect the magnitude of H bonding. And first basic condition for the formation of H bond is that the H bond always possess direction and generally asymmetric in nature. मतलब H बॉन्ड के बनने के लिए कोई स्पेसिफिक सिमेट्री की रिक्वायरमेंट नहीं है. अगर कोई भी दो मॉलिक्यूल जो ऑलरेडी बॉन्ड सेटअप कर चुके हों और उन मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई भी पोलैरिटी प्रेजेंट है, पोलैरिटी का मतलब प्लस एंड माइनस चार्ज अगर प्रेजेंट है, तो एक मॉलिक्यूल का प्लस चार्ज दूसरे मॉलिक्यूल के माइनस चार्ज से आपस में कंबाइन करके एंड बेसिकली H बॉन्ड को सेटअप कर सकता है. ठीक है. सेकेंड थिंग, द बॉन्ड स्ट्रेंथ डिपेंड्स अपॉन द एंगल एज वेल एज लेंथ. याद रखिएगा, जब कोई पोलैरिटी की मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो बेसिकली पोलैरिटी का मतलब है जितना बड़ा बॉन्ड सेटअप होगा उतना ज़्यादा पोलैरिटी का रिटेंशन कम हो जाएगा एंड मैग्नीट्यूड ऑफ H बॉन्ड भी घट जाएगा. स्मॉल चेंजेस फॉर द लिनियरिटी हैव माइनर इफेक्ट इन द स्ट्रेंथ. तो याद रखिएगा, जितना हम बॉन्ड को डेविएट करेंगे, जितना बॉन्ड टिल्ट होगा, उतना H बॉन्डिंग का मैग्नीट्यूड आपका कम हो जाएगा. तो क्या व्हाट द मीनिंग ऑफ दिस पॉइंट? इस पॉइंट का सिंपल सा मीनिंग है, अगर इंटरेक्ट करने के लिए दो डिफरेंट मॉलिक्यूल एक दूसरे के कांटेक्ट में फेस टू फेस नहीं आ रहे हैं, वो समवॉट एक दूसरे से डाइवर्टेड फॉर्म में आ रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में H बॉन्ड का मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा. ठीक है. और सबसे मेन इंपॉर्टेंट कंडीशन, जितना हम H बॉन्ड की बात करेंगे तो उस H बॉन्ड में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी
उतना ज़्यादा H बॉन्ड का मैग्नीट्यूड भी बढ़ जाता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द H बॉन्डिंग। नाउ I am taking the best example of the H bonding, that is water molecule. In this water molecule, the more electronegative oxygen is present at the center and the less electronegative H atoms occupying the terminal position. Due to the high electronegativity of this oxygen, the O will retain somewhat negative charge, while the H will retain the positive charge on it. So in this way, water molecule is the best example to explain the magnitude of H bonding. There are so many unique properties of water which are due to H bonding, and these properties may be the property of cohesion, property of adhesion, properties of surface tension, and the excellent solvent of the water. Why the water is considered the excellent solvent in this universe? Just because of the magnitude of H bonding. How we can explain these properties of water one by one? तो याद रखिएगा, जो वाटर की हाई स्पेसिफिक हीट होती है, जो वाटर को रेसिस्ट करती है चेंजेस इन टेम्परेचर के लिए, मतलब वाटर इज कंसिडर्ड एज ए एक्सीलेंट कूलेंट. व्हाई द वाटर हैव अ स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू एब्जॉर्ब द हीट? रीजन बिहाइंड, वाटर में इनॉर्मस एच बॉन्ड होते हैं, और आपको मालूम है इन एच बॉन्ड के फॉर्मेशन में दो पार्टिसिपेटिंग एटम्स की पोलैरिटी रिस्पॉन्सिबल है. इन एच बॉन्ड के फॉर्मेशन में किसी भी इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता. सो दीज एच बॉन्ड्स आर द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉन्ड, और इन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉन्ड के कांटेक्ट में, इन एनर्जी डेफिशिएंट बॉन्ड के कांटेक्ट में जैसे ही कोई हीट आएगी, जैसे ही कोई कंटेंट आएगा, तो ऐसी कंडीशन में ये वाटर मॉलिक्यूल हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं. और दैट्स वाई वाटर के कांटेक्ट में जैसे कोई हीट आती है तो वाटर उसको एब्जॉर्ब करता है, एंड दैट्स वाई वाटर इज कंसीडर्ड एज द एक्सीलेंट सॉल्वेंट. तो एक्सीलेंट कूलेंट के फॉर्म में अगर हम वाटर को काउंट करते हैं तो उसके पीछे उसके एच बॉन्डिंग का मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्सिबल होता है. इज इट क्लियर? तो दिस इज द वन ऑफ द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ द वाटर, एंड रिमेनिंग प्रॉपर्टीज ऑफ द वाटर आर द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज cohesion. What do you mean by the cohesion? Attractive forces between the particles of same kind. वाटर के मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ इंटरलिंकिंग एच बॉन्डिंग को बनाते हैं. तो वाटर मॉलिक्यूल के साथ अगर एट्रैक्शन का जो टेंडेंसी डेवलप होती है, आप उस प्रॉपर्टी को कोहेजन बोलते हो. ठीक है, यही रीज़न है कि जब आप वाटर की कुछ क्वांटिटी को हवा में उछालेंगे तो दीज वाटर क्वांटिटी ट्राई टू मेक अ स्फेरिकल शेप. तो जो ड्रॉप की शेप होती है वो समवॉट स्फेरिकल होती है. जैसे हम वाटर को फेंकते हैं या आप एयर के अंदर जैसे उसको पुश आउट करेंगे तो दिस वाटर ट्राई टू मेंटेन द स्फेरिकल शेप. तो स्फेरिकल शेप के लिए क्या चीज़ रिस्पॉन्सिबल है? जो सरफेस के वाटर की ड्रॉप के सरफेस पर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में इंटरलिंकिंग एच बॉन्ड को बनाने की कोशिश करते हैं, एंड दिस इंटरलिंकिंग टेंडेंसी of H bond formation for water that known as cohesion. ठीक है, तो इस कोहेजन की प्रॉपर्टी भी रिस्पॉन्सिबल होती है. आप कभी भी जब किसी भी इंसेक्ट को वाटर की सरफेस पर थ्रो करते हो तो इंसेक्ट की बॉडी वाटर की सरफेस पर फ्लोट करती है. तो उसके लिए क्या रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है कि वाटर के मॉलिक्यूल जो सरफेस पर होते हैं वो आपस में इंटरलिंकिंग एच बॉन्डिंग कर लेते हैं, जो वाटर की सरफेस टेंशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है. यही रीज़न है कि जब कोई भी डाइवर्स पानी के अंदर जम करता है तो अपनी बॉडी को टेपरिंग शेप में ले आता है ताकि वो वाटर की सरफेस टेंशन को कट करके वाटर के अंदर इंसर्ट कर जाए. अगर वो फ्लैट बॉडी के साथ वाटर की सरफेस पे जम करेगा तो उसको काफ़ी इंजरी होने के चांसेस होते हैं. रीज़न जस्ट बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन. सो फाइनली वी कंक्लूड दैट द कोहेजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल. क्लियर? अब सेकंड प्रॉपर्टी आती है दैट इज एडहेजन. जब कोई वाटर मॉलिक्यूल किसी दूसरे पोलर मॉलिक्यूल के साथ अगर इंटरलिंकिंग एच बॉन्डिंग बना लेता है
तो आप उस प्रॉपर्टी को एडिशन कहते हैं। अगर आप वेट हैंकी को, वो वेट हैंकी ले लीजिए, किसी वेट क्लॉथ को लेंगे और जब आप स्किन के कॉन्टैक्ट में लेके आते हैं तो हमारी स्किन पर प्लस या माइनस चार्ज प्रेजेंट है, तो वाटर के मॉलिक्यूल हमारी स्किन के साथ क्या बना लेंगे, बेसिकली एच बॉन्ड बना लेंगे। और जब एच बॉन्ड हमारी स्किन के बीच में और वाटर की लेयर के बीच में सेटअप होता है तो वो वेट हैंकी आपकी बॉडी पर स्टिक कर जाता है। तो किसी भी गीले कपड़े का, आपके वेट क्लॉथ का आपकी बॉडी से स्टिक करना, एंड दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ द एडहेजन। इज इट क्लियर? तो यही एक बेसिक प्रॉपर्टी एडहेजन की होती है। जब हम किसी भी टेस्ट ट्यूब के अंदर, जब हम किसी भी सिलेंडर के अंदर वाटर को फिलअप करते हैं तो वाटर का मॉलिक्यूल सरफेस पर एक लेंस की शेप को क्रिएट करता है। तो जो लेंस शेप यहाँ क्रिएट होती है, जो मेनिस्कस बन जाता है आपका, एंड दिस इज बिकॉज ऑफ द एडहेजन। तो कोहेजन एंड एडहेजन आर द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ द वाटर। तो हम एक्सीलेंट सॉल्वेंट के बारे में बात कर चुके हैं, वाई द वाटर इज कंसिडर्ड एज द एक्सीलेंट कूलेंट, and why the water having the property of cohesion and adhesion, and these properties finally due to the H bonding. Now we are representing the various examples of surface tension. मैंने आपको इंसेट का एग्जाम्पल दिया। इंसेट अपने वेट की वजह से, सरफेस टेंशन की वजह से वाटर की सरफेस पर फ्लोट करता है। वन मोर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग एयर, द मेनिस्कस। आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर जो वाटर का कप बनता है वो लेंस की तरह बनता है। तो जो आपकी ये जो सिलेंडर है, इस सिलेंडर पर कोहेजन एडिशन की प्रॉपर्टी की वजह से वाटर मॉलिक्यूल्स स्टिक करने की टेंडेंसी को कैरी करते हैं, और जो मिडिल में वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो कोहेजन की प्रॉपर्टी कैरी करते हैं। इसीलिए सरफेस पर आपको समवॉट लेंस की शेप आपको दिखाई देगी। तो ये अपर मेनिस्कस होता है, और जो मिड वाला पार्ट है उसको आप लोअर मेनिस्कस के नाम से जानते हैं। सम मोर प्रॉपर्टी दैट इज द कैपिलैरिटी। आप किसी भी बहुत नैरो ट्यूब के अंदर, जैसे कि पेन की रिफिल के अंदर, ठीक है, किसी भी निडल शेप कंटेंट के अंदर जब आप वाटर को फिलअप करते हो तो वाटर ऊपर की तरफ फ्लो कर जाता है। अपनी नेबरिंग सरफेस से कंपेरेटिवली वाटर ऊपर की तरफ फ्लो करता है, एंड दिस प्रॉपर्टी नोन एज कैपिलैरिटी। एंड this capillarity is because of the property of the H bond। तो कैपिलरी एक्शन का मतलब होता है माइन्यूट ट्यूब के अंदर जिसका अंदर का वॉल्यूम बहुत छोटा हो, जिसके अंदर की ल्यूमेन बहुत कम हो, जब वाटर के कॉन्टैक्ट में आएंगे तो वाटर के मॉलिक्यूल ऑटोमेटिकली ऊपर चढ़ जाते हैं। जब आप ड्रॉपर को डिप कर किसी पानी में डिप करते हो तो ड्रॉपर के अंदर वाटर का मॉलिक्यूल होल्ड हो जाते हैं, एंड दिस एक्शन inside the dropper, the holding ability of the water inside the dropper, that known as the capillarity. And this capillarity is again very important, by which you can explain the properties of the water, and this property of the water is due to the H bonding. Now we will discuss the other consequences of the hydrogen bond. And after completing the types of the H bonding, definition of H bonding, and how the H bonding affect the property of the compound like as water, the three important factor which are responsible for the formation of H bonding, जो मैंने यहाँ पर 3 एग्जाम्पल लिए हुए हैं, उसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है, उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है, उसमें फ्लोरीन प्रेजेंट है। ये तीनों एलिमेंट जो होते हैं, एंड दीज एलिमेंट नोन फॉर द हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो जब किसी भी कंपाउंड के अंदर बॉन्ड फॉर्मेशन में N का इन्वॉल्वमेंट होगा, मे बी द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द ऑक्सीजन इज देयर एंड मे बी द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द फ्लोरीन इज देयर, तो याद रखिएगा वहाँ पर H बॉन्ड बनने की प्रोबेबिलिटी ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। तो जब भी कोई N H के साथ बॉन्ड बनाएगा, OH के साथ बॉन्ड बनाएगा, या फ्लोरीन H के साथ बॉन्ड बनाएगा, तो इन दिस सिचुएशन ऑलवेज द डेवलपमेंट ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग टेक प्लेस। तो दीज 3 बॉन्ड, जो 3 बॉन्ड ऊपर इंडिकेट किए गए हैं, इनके साथ ऐसा नहीं कि और मॉलिक्यूल नहीं बनाते, बट दीज प्रोमिनेंट मॉलिक्यूल आर ऑलवेज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ H बॉन्ड। तो क्या बेसिक कंडीशन है इन बॉन्ड के बनने के लिए? एक तो परमानेंट डाइपोल होना चाहिए। आपको मालूम है जैसे ही O और H के बीच में बॉन्ड सेटअप हुआ, द हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन इज रिस्पॉन्सिबल टू पुल द इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स इटसेल्फ,
एंड O पे चार्ज नेगेटिव, H पे चार्ज पॉजिटिव। सेम यहाँ पर F पे चार्ज नेगेटिव, H पे चार्ज पॉजिटिव, N के पास चार्ज नेगेटिव और H के पास चार्ज पॉजिटिव होता है, तो परमानेंट डाइपोल बन जाता है। प्लस एंड माइनस चार्ज का डेवलप होना किसी मॉलिक्यूल पर, उसको डाइपोल फॉर्मेशन कहते हैं। एंड दिस डाइपोल फॉर्मेशन यू विल डिस्कस इन द चैप्टर स्टेट्स ऑफ मैटर ऑल्सो, इन देयर टाइप्स ऑल्सो। दूसरा, H बॉन्ड बनने के लिए हाइड्रोजन एटम का होना बहुत जरूरी होता है। एन एटम विद लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे O के पास भी लोन पेयर है, N के पास भी लोन पेयर्स होते हैं, एंड फ्लोरीन के पास भी लोन पेयर होते हैं, एंड वो H बॉन्ड बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जो सबसे बड़ा एप्लीकेशन H बॉन्डिंग का आप 11th एंड 12th क्लास के अंदर पढ़ेंगे, दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट। whenever you will compare the boiling point of the two compounds, maybe the organic compound, maybe the inorganic compound, and always you have to calculate the magnitude of the H bonding. The compound with higher magnitude of H bonding always having the higher boiling point. Second thing, and compound with the high specific heat capacity, and this segment you will discuss in chapter thermodynamics. तो स्पेसिफिक हीट के केस वाले जितने भी एग्जाम्पल्स पढ़ोगे वहाँ पर भी H बॉन्डिंग का मैग्नीट्यूड ही बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होता है। इन दिस वे वी विल बाइंड अप द टॉपिक हाइड्रोजन बॉन्डिंग। थैंक यू।